In previous lecture, we discussed about the PMR as well as a very general discussion was there regarding the chemical shift also. Not discussed what is actually the chemical shift is. Having a review of the previous discussion, whenever we are discussing the proton in the magnetic field, only proton is not present there, but also the electrons are present with the protons. So they are also affecting the applied magnetic field. Every time whenever the magnetic field is applied, the protons, they are set into the diamagnetic circulation and they oppose the applied magnetic field. So they reduce the applied magnetic field by certain factor, which is termed as the shielding or shielding, which is termed as the shielding. Whenever the electrons, they are present near to the nucleus, we say it is the shielding because they are covering that proton. So that is why we say it is sealed or shielded. Whenever the electrons are present away from the nucleus, we say it is being de-shielded. So one type of nucleus, that is proton, because of electronic environment, it is appearing, its signal is appearing at the different positions in the NMR spectra because its electronic environments are different. It means the gap between the two signals, it arises because of the electronic environment, or not the electronic environment, you can say because of shielding and the de-shielding. What is the gap between the two nuclei? What is the gap between the signals of two nuclei is there? Generally that is termed as the chemical shift. A chemical shift example we discussed in case of the methanol here. The carbon, it is having 3 protons. So according to the proportionality, a 3 proton signals will be larger in size and 1 proton signal will be smaller in size because here it is H, here it is the H3. What? When oxygen is present near to the hydrogen, so oxygen is more electronegative, it will withdraw the electronic density toward itself. So it will cause shielding, de-shielding at the proton. So when the proton is de-shielded, then lesser magnetic field is required to resonate that proton. तो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो वो नजर आ रही है आपको, जो रेड वाली स्प्लिटिंग है वो OH वाले पार्ट के लिए है. इसमें जो प्रोटॉन है उसमें जो एनर्जी लेवल की सेपरेशन है वो ज्यादा है, तो आसानी से 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के पास में जो है इसका क्या हो सकता है, रेजोनेंस पॉसिबल है. लेकिन उतने ही मैग्नेटिक फील्ड पे जो 3 प्रोटॉन है कार्बन के साथ, उनका एनर्जी सेपरेशन कम है. We have to apply more magnetic field in order to enlarge the gap between these two so that they can resonate at the 100 megahertz. So because of that, this hydrogen nucleus, that is again the hydrogen nucleus. What? Both nuclei, they are resonating at the different positions. Reason being that electronic environment of the both, it is different. So these are not equivalent protons, they are different protons. They are electronically different as well as magnetically they are different protons. What the difference between the two signals is there means at what magnetic field or at what frequencies they are resonating. तो वो जो difference है जनरली उसको क्या बोलते हैं हम, chemical shift बोलते हैं. Chemical shift जो है, that not only arises, or shielding or de-shielding, that is not only arising because of the diamagnetic circulation of the electron, it is also affected by the field induced circulation of the pi electrons, as it is already discussed in case of the ethylene as well as it is discussed in case of the benzene. We will discuss this later on again somewhere. Now come to the main point, that what is the chemical shift. So whenever we are discussing the chemical shift, a general term I said that whenever we are having a NMR spectra, what is the gap between the two signal is there, that is termed as the chemical shift.
मान लो दो ही सिग्नल आ रहे हैं, उन दोनों के बीच में जो है वो गैप जो आपके पास आ रहा है सिग्नल के बीच में, तो उनके बीच में कितना गैप है उसको हम केमिकल शिफ्ट जो वो जनरल तौर पर बोलेंगे। अगर इसको कैलकुलेट करना है कि किस तरह से केमिकल शिफ्ट जो वो केमिकल शिफ्ट को डिस्कस किया जा सकता है, तो पहले भी हमने पीछे डिस्कशंस में जो है वो जितने भी प्रोटॉन्स हैं उनके लिए जो है वो 1 to 5 टेस्ला जो है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की बात की है। तो यहां पर एक इन बिटवीन वैल्यू 2.34 टेस्ला ली है। सपोज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 2.34 टेस्ला एंड द फ्रीक्वेंसी एट विच इट इज ऑपरेटिंग इट इज 100 मेगाहर्ट्ज। और जो दो सिग्नल हैं सिमिलर न्यूक्लियाई के लिए, हाइड्रोजन के लिए मान लीजिए, उनके बीच में जो डेल्टा वैल्यू या डिफरेंस जो आ रहा है सिग्नल के बीच में दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 3.26 माइक्रो टेस्ला। तो इसका मतलब केमिकल शिफ्ट अगर बात करनी हो इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो 10⁻⁶ यूनिट्स। जो अप्लाइड है वो कितना है 2.34, और जो उनके बीच में डिफरेंस आ रहा है दैट डिफरेंस is how much? That is the applied magnetic field operating at fixed frequency 100 megahertz। इसका मतलब ये फिक्स फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहा है, तो आपने मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना है फॉर द रेजोनेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोटॉन्स के लिए। आपके पास दो सिग्नल आए और दोनों सिग्नल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है 3.26 माइक्रो टेस्ला का। दैट इज वेरी लेस गैप, और इस गैप को अगर आपको शो करना हो कागज के ऊपर तो बहुत मुश्किल होगी कि इतने माइक्रो टेस्ला का जो है वो गैप जो है वो आ रहा है प्रैक्टिकली, या उसको मतलब अप टू द स्केल शो करना मुश्किल रहेगा। अगर इसको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो 139 हर्ट्ज जो है वो उनके बीच में डिफरेंस आएगा। 139 हर्ट्ज का गैप भी जो है वो आसानी से शो ऑन टू द स्केल जो वो नहीं किया जा सकता है, बिकॉज दैट गैप इज मच मोर। दूसरा, ये दोनों गैप जो शो हुए हैं यहां पर, इन बोथ दीज गैप्स वी आर हैविंग द यूनिट्स। एक में मैग्नेटिक फील्ड्स की यूनिट है, दूसरे में जो है वो फ्रीक्वेंसी के यूनिट है। और हर एक प्लेस टू प्लेस जो स्पेक्ट्रोमीटर्स हैं लैब टू लैब दे वेरी अकॉर्डिंग टू द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। कुछ एक 40 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं, कुछ एक 60 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं, कुछ एक 100 मेगाहर्ट्ज पे ऑपरेट करते हैं। जैसे ही ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करेगी डेल्टा की वैल्यू वेरी कर जाएगी। डेल्टा की वैल्यू क्या कर जाएगी? डेल्टा मींस गैप बिटवीन द टू सिग्नल्स दैट विल वेरी। तो हर एक स्पेक्ट्रोमीटर के हिसाब से जो वो डेल्टा वैल्यू वेरी कर रही है, तो इसीलिए ये दोनों वैल्यू जो है वो यूजेबल नहीं है, चाहे वो आपने माइक्रो टेस्ला में एक्सप्रेस की हैं चाहे वो फ्रीक्वेंसी के तौर पर एक्सप्रेस की हैं। इनको जो है वो हम एज ए फ्रैक्शन के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं, एंड दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द अप्लाइड फील्ड और एज ए फ्रैक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। तो यहां छोटा सा एग्जांपल है कि 139 अगर हर्ट्ज उनके बीच में गैप आ रहा है दो सिग्नल के बीच में, तो हम इसको 100 मेगाहर्ट्ज से जो है वो डिवाइड कर देंगे। 100 मेगाहर्ट्ज के पास अगर से आप उसको डिवाइड करते हो तो आपके पास वैल्यू आएगी 139 इंटू 10⁻⁶ वैल्यू आएगी। इसके यूनिट नहीं होंगे क्योंकि हर्ट्ज विल कैंसिल विद द हर्ट्ज व्हेन यू विल डिवाइड दीज टू फैक्टर्स। और अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से कैलकुलेट करते हो तो 3.24 या 3.26 जो वो अप्लाइड दैट इज द डेल्टा वैल्यू, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 2.34 है। तो फ्रैक्शन अगर इसकी कैलकुलेट करनी है तो 3.26 डिवाइडेड बाय 2.34 दैट विल अगेन गिव द वैल्यू 1.39 इंटू 10⁻⁶। तो इन दोनों तरीकों से जो वो आपके पास अब डेल्टा की वैल्यू जो है वो एक ही जैसी आ रही है, जब आप उसको एज ए फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड या फिर एज ए फ्रैक्शन ऑफ ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। द वैल्यू इट इज कमिंग इनटू 10⁻⁶, सो जनरली दीज वैल्यूज आर इन पार्ट्स पर मिलियन पीपीएम। तो 10⁻⁶ का फैक्टर यहां से हटा देते हैं, इसमें 1.39 पीपीएम, नीचे भी कितना आएगा 1.39 पार्ट्स पर मिलियन। तो इस तरीके से जो है वो डेल्टा वैल्यू एक्सप्रेस की जा सकती है।
अब आते हैं बात की केमिकल शिफ्ट बोलेंगे किसको। मैंने बात की दो सिग्नल और उनके बीच का डिफरेंस, लेकिन जो मैंने प्रोटॉन दो डिस्कस किए उन प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट थी। तो हर एक की इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट डिफरेंट होगी तो डेल्टा की वैल्यू तो वेरी करती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट वेरी कर रही है। इसके लिए क्या किया जाता है, एक स्टैंडर्ड से इसको कंपेयर किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड रख दिया और उस स्टैंडर्ड से कितना गैप आ रहा है, कितने डिफरेंस पे जो है वो प्रोटॉन का सिग्नल आ रहा है, तो उस डिफरेंस को हम जो वो एज ए केमिकल शिफ्ट जो वो बोल सकते हैं। क्या कंपैरिजन हो सकता है, एक ऐसा प्रोटॉन जिसके अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन ना हो और दूसरा ऐसा प्रोटॉन जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हो। जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट हो वो प्रोटॉन तो पॉसिबल है, लेकिन खाली प्रोटॉन जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन ना हो वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज ए टोटली थ्योरेटिकल। तो इसका मतलब इस तरह की सिचुएशन तो कभी आएगी नहीं। तो इसके लिए जो है वो कोई ना कोई और स्टैंडर्ड यूटिलाइज किया जाता है, जिसके अकॉर्डिंगली हम जो वो केमिकल शिफ्ट को जो वो एक्सप्रेस करते हैं। और उसमें एक एग्जांपल है टेट्रामिथाइल सिलीन का। किसका एग्जांपल है, टेट्रामिथाइल सिलीन का। ये किस तरह का एग्जांपल है, पहले एक तो टेट्रामिथाइल सिलीन में 12 प्रोटॉन्स हैं। आई थिंक दे आर विजिबल टू यू। देर आर 12 protons. So this is the one methyl, another methyl, that is the another methyl, and that one is the another methyl. तो 12 प्रोटॉन का सिग्नल जो है वो आसानी से जो वो आइसोलेट किया जा सकता है, किसमें, स्पेक्ट्रा में, कि कहां पर जो है वो आपके पास जो है वो सिग्नल आ रहा है। तो जनरली जो है वो टीएमएस का सिग्नल इतना बड़ा होता है, ये साइड में अगर साइड आपको सिग्नल नजर आ रहा होगा, दैट सिग्नल इज बिकॉज ऑफ द टीएमएस। तो टीएमएस का इतना बड़ा सिग्नल होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हाइट जो है उसकी। तो टीएमएस का सिग्नल आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है। टीएमएस जो है वो जिस भी सैंपल का स्पेक्ट्रा लेना उसके साथ 5% जो वो ऐड करते हैं। टीएमएस की एक और खासियत है कि इसका जो सिग्नल है वो हमेशा एक ही साइड पे आएगा। अब किस साइड पे आएगा वो डिस्कस कर लेते हैं। सिलिकॉन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और सिलिकॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मोस्टली कहां की तरफ होंगे, कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे। सो दे आर मोर नियरर टू द कार्बन देन टू द सिलिकॉन। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर क्लोजर टू द कार्बन। तो यहां जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स होंगे दे विल बी आल्सो क्लोजर टू द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है उसके नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इट इज ए सील्डेड प्रोटॉन। इट इज ए सील्डेड प्रोटॉन। अगर मैंने इसको कंपेयर करना हो तो किसके साथ किया जा सकता है, इसको उस मिथाइल ग्रुप के साथ कंपेयर किया जा सकता है जो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हो। ये जो टेट्रामिथाइल सिलेन है दैट इज नॉट एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये सिलिकॉन का डेरिवेटिव है। तो सिलिकॉन का डेरिवेटिव जो है वो इनऑर्गेनिक काउंट होगा, ना कि ऑर्गेनिक। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें प्रोटॉन कम सील्डेड रहता है इन कंपैरिजन टू द सील्डिंग ऑफ द प्रोटॉन्स इन टेट्रामिथाइल सिलेन। तो मैक्सिमम कवर्ड प्रोटॉन है किस केस में, टेट्रामिथाइल सिलेन में। अगर मैक्सिमम कवर्ड है तो इसमें आपको एक्सेस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब टीएमएस का सिग्नल जो है वो अप फील्ड पे आएगा, सबसे लास्ट पे आएगा, क्योंकि मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इसके प्रोटॉन्स को रेजोनेट करने के लिए। तो हमेशा टीएमएस का सिग्नल जो है वो एक साइड पे आता है। क्या आता है, सिंगल साइड पे आएगा। जितने भी प्रोटॉन्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, उसका सिग्नल जो है वो हमेशा इससे पीछे ही आएगा। आगे बहुत कम कंपाउंड्स का आता है। वेरी फ्यू कंपाउंड्स आर देयर विच आर हैविंग देयर सिग्नल अबव द टीएमएस। Otherwise, maximum compounds they are having signal prior to the TMS signal or downfield in comparison to the TMS signal. तो इसकी एक ये खासियत भी है कि इसका सिग्नल साइड पे आएगा। 12 प्रोटॉन का सिग्नल होता है तो आसानी से आइसोलेट भी किया जाता है। दूसरे सिग्नल इसके कंपैरिजन में कितने डिस्टेंस पे आ रहे हैं, द गैप बिटवीन दो सिग्नल इज टर्म्ड एज द केमिकल शिफ्ट। तो इसका मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द
position of TMS signal and the signal of the particular proton, that is termed as the chemical shift here. वो प्रोटॉन अगर यहां पर आता है तो उनके बीच में कितना गैप है, यहां आता है तो उसके बीच में कितना गैप है, यहां आता है तो टीएमएस से कितना गैप है, उसको क्या बोलेंगे हम, केमिकल शिफ्ट. तो केमिकल शिफ्ट इज द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रोटॉन इन एनएमआर स्पेक्ट्रा इन रिलेटिव टू द टीएमएस सिग्नल, कि टीएमएस सिग्नल से उसका दूसरे प्रोटॉन का सिग्नल जो वो किस पोजीशन पे आ रहा है. कुछ एक कंपाउंड्स में जो वाटर सॉल्युबिलिटी जरूरी होती है, तो टीएमएस वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो टीएमएस की बजाय जो है इसके नीचे वाला डेरिवेटिव जो है वो यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज वाटर सॉल्युबल. व्हाट इज दिस? इट इज ट्राइमिथाइल सिलाइल प्रोपाइल सोडियम सल्फाइड. सो दैट इज वाटर सॉल्युबल एंड दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ द in place of the TMS or tetramethyl silane, where we want the water solubility. So some values are designated for the TMS signal and the this side एक स्केल है, उसके डेल्टा स्केल बोलते हैं इसको. तो TMS के लिए जो है वो 0 वैल्यू असाइन की हुई है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो उनकी वैल्यू 10 या 11 या 12 तक जो है वो आ सकती है यहां पर. सो ये स्केल जो है वो मैक्स फील्ड जो है इस साइड को इंक्रीज कर रहा है, नीचे वाली साइड को, पर स्केल जो है इससे रिवर्स ऑर्डर में चलती है. स्केल कहां चलती है? स्केल जो वो रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, डेल्टा स्केल, और फील्ड जो है वो इस साइड को इंक्रीज होगा, क्योंकि टीएमएस का सिग्नल जो कहां आ रहा है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड पे आ रहा है, और बाकी ऑर्गेनिक का सिग्नल जो है वो इससे पीछे आता है. लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द स्केल. स्केल एक नहीं है, स्केल 2 है. एक को डेल्टा वैल्यू बोलते हैं, दूसरे को टाउ वैल्यू बोलते हैं. जो टाउ वैल्यू होती है वो डायरेक्ट होती है, वो 0 से लेके 10 तक आती है, और उन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है, मैक्सिमम टी वैल्यू मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड. सो इंक्रीजिंग फील्ड एंड इंक्रीजिंग टाउ वैल्यू बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो टीएमएस के लिए इसकी वैल्यू 10 होती है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की इसके लिए वैल्यू जो है वो पीछे की तरफ आएगी 0 से लेके 10 के बीच में. जबकि डेल्टा वैल्यू डिफर करती है, डेल्टा वैल्यू जो है वो इंक्रीजिंग फील्ड के साथ डिक्रीज होगी. सो इंक्रीजिंग फील्ड एंड डिक्रीजिंग डेल्टा वैल्यू, तो इस साइड को फील्ड इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन डेल्टा वैल्यू डिक्रीज हो रही है. दोनों में जो वो इनवर्स रिलेशन है, एक फैक्टर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा फैक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. डेल्टा वैल्यू जो टीएमएस के लिए 0 आती है. कितनी आती है? 0. जब भी आपने डेल्टा वैल्यू याद करनी है, क्योंकि टाउ स्केल जो वो यूटिलाइजेशन से बाहर हो चुकी है, केवल डेल्टा वैल्यू ही ऑपरेटिव है. आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज होंगी ये वैल्यू, तो वहां भी याद करनी पड़ेंगी, इस सेमेस्टर में नहीं तो अगले सेमेस्टर में. तो इसको आपने याद रखना है. रिमेंबर द वर्ड डी. डी मीन्स डाउन फील्ड, डी मीन्स डी शील्डिंग, डेल्टा वैल्यू इंक्रीजिंग. अब ये किस तरह से रिलेटेड है? जितनी ज्यादा डेल्टा वैल्यू होगी तो उतना डाउन फील्ड, यहां फील्ड क्या है, टीएमएस के सिग्नल पे मैक्सिमम फील्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा. जैसे डेल्टा वैल्यू इंक्रीज होगी तो हम डाउन फील्ड की तरफ जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द लेसर मैग्नेटिक फील्ड. सो डी मीन्स डाउन फील्ड. अगर लेसर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं तो कम मैग्नेटिक फील्ड कब लगेगा? जब वहां पर डी शील्डिंग होगी. ज्यादा कब लगेगा? जब वहां पर शील्डिंग होगी. अगर इलेक्ट्रॉन कवर्ड होगा इलेक्ट्रॉन से तो उसको क्या बोलेंगे? शील्डेड. अगर वो इलेक्ट्रॉन से कवर्ड नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? डी शील्डिंग. डी शील्डिंग होगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड लगेगा. So the word D is there. D means down field, D means de-shielding, and D means delta value increasing. तो ये आपको थोड़ा सा याद करने में बेहतर रहेगा, डाउन फील्ड, de-shielding and the delta value. So these are some values for the delta values for different types of the protons. They are self-explanatory here. You can discuss them. अगर आपको कहीं पर कुछ डॉट लगता है तो वहां पर आप जो है वो क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं बाद में, कि सर ये वैल्यू हमें समझ नहीं जा रही है तो किस तरीके से इसने पुटअप किया और किस तरीके से नहीं की है पुटअप यहां पर.
सो सी हियर RCH3, तो यहां पर क्या है, सारा अल्केन्स का पार्ट है। तो अल्केन में कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत कम डिफरेंस होता है। सो प्रोटॉन इज मोस्टली कवर्ड, सो दैट इज व्हाई इट इज हैविंग वेरी लेस डेल्टा वैल्यू 0.2 to 0.9। जहां पर ये डबल बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड में जो वैल्यू क्या हो रही है, डाउनफील्ड जा रही है। वाई इट इज गोइंग टू डाउनफील्ड, 4.6 से 5.8 तक वैल्यू गई है। इट इज ड्यू टू द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसकी जो सर्कुलेशन होगी, दैट विल रीइंफोर्स द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज ऑफ दैट इट इज हैविंग डेल्टा वैल्यू हायर। जो बेंजीन है, बेंजीन के केस में भी प्रोटॉन 6 से लेके 9 तक जो है वो उसकी डेल्टा वैल्यूज आ रही है, डाउनफील्ड आ रहा है। इट मीन्स very less magnetic field is required to resonate the protons of the benzene. Reason being, it is the circulation of the pi electron cloud which is reinforcing the applied magnetic field। जो पीछे हमने डायग्राम डिस्कस किया था, वहां से आपको शायद इसका रिलेशन थोड़ा क्लियर हो सकता है। यहां देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगी, तो हाइड्रोजन जो वो डीसिल्डेड होगा, तो वैल्यू 4 to 4.5 आ रही है। क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम डीसिल्डेड होगा, तो वैल्यू कम हो गई। इसी तरह से ब्रोमीन और ऑक्सीजन का केस जो वो डिस्कस किया जा सकता है। यहां पर ये देखो एसिड ग्रुप है, एसिड ग्रुप में हाइड्रोजन किसके साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो प्रोटॉन्स को क्या कर देगी, डीसिल्ड कर देगी। सो द डेल्टा वैल्यू इज मच मोर हायर, 10.5 to 12 इसकी वैल्यू जो वो आ रही है। तो ये वैल्यूज जो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। कंसल्ट द बुक आल्सो फॉर द डिस्कशन ऑफ दीज वैल्यूज। वैसे यहां मेंशन नहीं किए हैं, इसकी आपके फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो चैप्टर है इसमें मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा प्रोटॉन जो है वो किस पोजीशन पे जो है वो रेजोनेट करता है। सो दैट आर द केमिकल शिफ्ट वैल्यूज और दैट आर द डेल्टा वैल्यूज। रिमेनिंग पोर्शन वी विल डिस्कस